ये देखिए वाला स्क्रीन से ज्यादा अच्छा है. Okay, just. Hi guys, welcome back to my channel Every Corner of World. So due to this lockdown, we have come together and we have received a few questionnaires in our Instagram ID regarding about ourselves. So we have decided that today we will do something fun related chat session. Yes, and answer your questions. Sister tag kind of. So the first question is, बहुत ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है. इट्स नॉट ओनली इंस्टाग्राम में हमें मिला है, लेकिन रास्ते में चलते फिरते लोग हमें पूछते रहते हैं. Yes, what's Who is elder? Okay, she is elder. I'm the younger one. पता नहीं, इसको लोग एल्डर बोलते हैं हमेशा. Yeah, because I look more mature and I am more mature than her. Oh my god, really? Yeah. Okay, fine. Next question. Real name and nickname. So her real name is, you already know, her real name is Pamela Mukherjee, and she is Angela Mukherjee. Yes. And her nickname is Bui. B-U-I. Bui. Okay, and इसको लोग टू जानते हैं. 22. Yeah, T-U-T-U. So mine is more cuter than her. Oh my god. How would you say this? कि yours is more cuter than mine? Because mine is cuter. Yeah. Next question. ठीक है. Which gift you liked most from your sister? Okay, so I wanna say this. So there are like lot of gifts I received from her. Even till now I am receiving. Yes, I'm giving. Yeah, I've given her so many gifts. Vice versa. तो सबसे फेवरेट जो बेस्ट गिफ्ट मुझे लगता है उसमें से दो है. एक है, इसने मुझे इटली से केल्विन क्लेन का एक बैग ला के दिया था, वो मैं अभी भी यूज़ करती हूँ. एंड द सेकेंड वन इज़ द वर्साचे का. इसने मुझे ब्लैक करंट का एक परफ्यूम गिफ्ट किया, जबकि इसने ही ज़्यादा यूज़ किया है. सो या दिस टू गिफ्ट्स आर माई मोस्ट ऑफ माई फेवरेट गिफ्ट. Yes, but for me, everybody gives tangible gifts to their siblings or relatives. But she has given me world's best gift ever when she decided not to teach me anymore. 5th स्टैंडर्ड में एक बार ही मुझे टीच कर रही थी, पढ़ा रही थी, बहुत मारती थी पढ़ाने के टाइम. एंड देन मॉम डिसाइडेड कि ओके फाइन, दिस इज एनफ एंड देन यू शुड रिटायर फ्रॉम योर जॉब. सो इसने भी मुझे कहा कि तेरे को पढ़ाना मेरी बस की बात नहीं है. मैंने मतलब फेमस एंड द fantastic, the best gift ever I have received from her. वाह, मुझे ये बात पता नहीं था. ठीक है, ओके फाइन. टैंजिबल गिफ्ट मुझे अभी भी याद है. तूने मुझे एक ड्रेस गिफ्ट किया था जो मेरा बहुत फेवरेट था. तेरा ड्रेस था बेसिकली, तूने मुझे गिफ्ट किया था. तो I really loved that gift. I still have the dress with me, so that's the best gift. Yay! So number 4 question is, what was your best trip together and why? So okay, let me answer this. So हमने बहुत सारा trips एक साथ किए हैं. As you know that I love to travel and she doesn't. So no, I like traveling, but I don't love. Like I can't leave for traveling. Yeah. Like me, something different. Okay. So our best trip together is Manali. Yeah, Manali was the best trip together. Because Manali first time हमने स्नो एनकाउंटर किए थे और इट वाज लाइक विदाउट पेरेंट्स, मतलब मॉम के बिना. तो हमने बहुत फन फील्ड एक्टिविटीज़ किए थे. एंड वन ऑफ माई बेस्ट ट्रिप आई कैन से विथ हर, बिकॉज बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था, बहुत ज़्यादा आई कैन से कि हमने मतलब बहुत एंजॉय किए थे, बहुत ज़्यादा. या बिकॉज ऑफ कि वही एक ट्रिप था जिसमें मॉम हमारे साथ नहीं गई थी ड्यू टू सम रीजन. एंड देन we found our bachelorhood. कभी भी कहीं पे निकल जाना, रात के 8 बजे 9 बजे भी जाके सामने की शॉप से बियर लेके आना, एक्सप्लोर करना, जो जगह पहचानते नहीं है बस वहीं पे चले जाना. So we explored a lot of these things. Okay. So what was your best trip with me? Oh, Manali. Yeah, same. अच्छा, हाँ, क्योंकि हमने बहुत एंजॉय किए थे, बहुत ज़्यादा. By the way, Goa was also good. Our mom was there still, and हम शाम के 7 बजे जैसे ही पूरी दोपहर हम लोग बीच में गुजारते थे, और जैसे ही सूरज ढलना रुक जाता था, मतलब ढल जाता था, मॉम यूज टू बी सो स्केयर्ड कि ओके फाइन ये गोवा है तो दिस इज अ वेरी डेंजरस प्लेस, नाउ वी शुड गो बैक. तो सो
7 PM we used to come back to our hotel and उसके बाद पूरे टाइम होटल में रहती थी. अभी हम लोग एक ना और प्लान करेंगे एंड वो आई थिंक आप लोगों ने हमारा गोवा वीडियो तो देखे होंगे. अगर नहीं देखे होंगे तो मैं ऊपर कार्ड में डाल दूंगी, तो प्लीज़ देख लेना. बहुत फन फिल था दो, मतलब मोमोज ऑफ दैट interrupting or TK, it was like fun. So anyway, the next question is number 5. One of her positive point. So one of her best positive point which I find is she is very hardworking. She works in MNC and she does this travel blogging kind of thing, YouTube and all, and she works really hard to achieve a place to write her blogs. You know, she does a lot of travels, editing, a lot of research on her work just to send those works to you guys. So she's a very hardworking. Thank you. Welcome. So one of her positive point I can say that she motivates me a lot. जब भी मैं थोड़ा डाउन हो जाती, बिकॉज आई एम लाइक यू कैन सी ओवर थिंकर. मैं हर छोटे छोटे चीज़ में बहुत ओवर थिंक कर लेती हूँ. अगर मुझे कुछ बैड कमेंट भी आ जाते हैं ना तो भी मुझे बहुत बुरा लगना स्टार्ट हो जाता है. तो मतलब एज पर माई सिस्टर्स लाइक शी एंड रूमेला, अनदर वन द यंगेस्ट वन, अभी वो नहीं है यहाँ पर. इन दोनों मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं हमेशा. मतलब कभी भी मैं डाउन हो जाती हूँ, अगर मुझे कभी लगता है कि अब बस क्या करना है, रुक जाऊं, कुछ और सोचूं, बट ये लोग मुझे हमेशा बहुत पैम्पर करते हैं. एक बार तो इनफैक्ट ये भी हुआ कि मैं जस्ट घर से एंटर कर रही थी, मैं देखा कि ये जमीन पे पड़ी हुई है. ऐसा कुछ नहीं है. क्या हुआ बोला, यूट्यूब में किसी ने मुझे गंदा कमेंट किया. मैंने कहा चल उठ जा, कोई बात नहीं. ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही बोल रही है, ठीक है. ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. तो वन ऑफ हर नेगेटिव पॉइंट. नेगेटिव पॉइंट. You don't have one. Okay, now you start, please. ओके सो मैं बोलूँ इसके नेगेटिव पॉइंट. तो मैं बताती हूँ इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है. ये ना बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेके मतलब ये सुनती नहीं है किसी के. मतलब अपनी, मतलब मैं अगर दुखी हूँ तो इसको अपनी पड़ी हुई है. एनिमल्स की वीडियो देखे जा रहे हैं, नेशनल ज्योग्राफी, ये वो. मतलब मैं अगर बोल भी रही हूँ कि भाई मुझे मेरा सुन ले, या फिर मैंने कोई मूवी देखा, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि ये मूवी का स्टोरी, नहीं सुननी है इसको. काम पे मतलब हमेशा फ़ोन पे लगे रहती है कि आप पता नहीं क्या क्या गेम वेम खेलती रहती है. भाई अगर आप एक अपनी सिस्टर के साथ हो तो थोड़ा सा तो वैल्यू दो उनको, उनकी भी बात सुना करो. बट ये तो महाशय अपनी ही धुन पे रहते हैं, समझ में नहीं आता है मुझे. बट इसकी नेगेटिव पॉइंट अब मैं बताना चाहूंगी. शी एक्सैचुरेट्स अ लॉट. छोटी सी कहानी है कि एक लड़की सामने वाले पानी पूरी की शॉप में खड़ी होकर पानी पूरी खा रही है, एंड दैट्स ऑल. पानी पूरी वाला का ड्रेस, उसका एक्सप्रेशन, लड़की का पास्ट, लड़की का फ्यूचर, लड़की के साथ कौन खड़ा है, लड़की का कैसा ड्रेस है, लड़की का एक्सप्रेशन कैसा है, आगे जिंदगी में लड़की की फ्यूचर कैसे होने वाली है, उसकी एम क्यों नहीं है, और वो पानी पूरी ही क्यों खा रही है. ये पूरा एक स्टोरी बना के 3 घंटे का एक स्लॉट आपके पास पेश हो जाएगा, जो आपको सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा. सो दैट्स द मेन नेगेटिव पॉइंट ऑफ हर. दिस काइंड ऑफ पीपल आर लाइक यू कैन से ड्रामेटिक. ये बहुत सपने दिखते हैं, स्टोरी टेलर, सपने दिखाती है लोगों को. किसी की भी स्टोरी की नहीं बना सकते हो ना, वो भी जिसको मैं नहीं जानती हूँ. आई डोंट वांट टू लिसन. या सो फॉर मी दिस इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ हर एंड नथिंग एल्स. या ठीक है. ओके सो द नेक्स्ट पॉइंट इज योर बिगेस्ट फाइट एवर. कौन सा? हमारे में जितना भी फाइट होता था ना, सारे बिगेस्ट ही है. हम जब तक मम्मी के चप्पल नहीं खाते थे, हम सुधरते नहीं थे, और हमारी फाइट कभी रुकती नहीं थी. बिगेस्ट फाइट 2-3 बार ये भी मैं बता सकती हूँ कि एक बार इसने मुझे घर से निकाल दिया था, क्योंकि ये बहुत थके हारे आ रही थी मुझसे. मैंने कहा लाइफ से सॉरी. थके हारे आ रही थी बाहर से. मैंने खाना बनाया था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था, एंड उसने खाया, फिर उसने मुझे घर से निकाल दिया ये बोल के कि मैं, एक आदमी बाहर से आएगा खाने खाने तो तुम ऐसे उसको खिलाओगे. नहीं, इसने भी मुझे निकाल दिया था बाय द वे घर से. हाँ, क्योंकि बड़ी दीदी को कौन निकालता है घर से इस तरह से. तो एक थके हारे खाना बना रही थी, वो भी तो नहीं, थके हारे नहीं. ये फिर से मुझे कुछ स्टोरी टेलिंग करने गई थी, मैंने मना किया तो मुझे टॉन्टिंग कर रही थी, तू ऐसी है वैसे ही करके. तो मैंने सोचा कि ठीक है, इट्स फाइन.
वैसे बहुत सारे फाइट्स थे और इसमें जो ये क्वेश्चन इसको मिली थी बाय द वे, इसने अपनी स्टोरी में डाली थी इंस्टाग्राम में कि हर आस्क मी क्वेश्चंस, और इसको पूछा गया था कि बिगेस्ट फाइट। तो हमारे सारे फाइट्स वैसे बिगेस्ट ही होते हैं, तो बट अभी आजकल हम नहीं करते, हम सुधर गए, हम बच्चे सुधर गए हैं लाइक दैट पे। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन रिलेशनशिप एडवाइस यू वांना गिव टू योर सिस। सो मैं बड़ी हूँ तो मैं बोलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है इसके लिए रिलेशनशिप एडवाइस दो, शी इज़ वेरी मैच्योर बच्चा, मतलब हमारे घर में बहुत पैम्पर करते, मम्मी का फेवरेट है ये और पापा की छोटी वाली, मैं पता नहीं किसकी हूँ, दोनों ही बोलते कि तुम हम दोनों के हो, पता नहीं, यू नो अपनी रिलेशंस को बहुत ही मैच्योरली हैंडल करती है। मैं बोलना चाहूँगी बिकॉज मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बहुत ओवर थिंक हो जाती है एंड मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ हर चीज़ में, लेकिन बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जो है वो है, जो अपनी प्रेजेंट में एंजॉय करो, और अगर तुम्हें लगता है कि यू नो मतलब जैसे मैं बहुत टॉकेटिव हूँ तो मैं बातें करती रहती हूँ, तो मैं अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम भी होती है मेरी रिलेशनशिप में तो मैं उसको बोल देती हूँ, मतलब यू नो शेयर कर लेती हूँ एटलीस्ट मम्मा से या फिर इससे, बट ये नहीं करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में दबा के रखने से कुछ नहीं होता है, पता है ये ना, आपको एटलीस्ट मतलब जो आपकी मतलब जो थोड़ा सा है ना आपकी करीबी, उससे डिस्कस करना चाहिए, उसकी भी थोड़ा सा सुनना चाहिए, मतलब लाइफ तो चलता ही रहता है, तो लाइक दैट एग्जैक्टली। तू मुझे इतना दुखी क्यों प्रूव करने की कोशिश कर रही है? दुखी नहीं, लाइक मतलब इनको ये लगेगा कि भाई ये लड़की के अंदर इतना जिंदगी में इसकी दुखी नहीं है, शेयर ही नहीं करती है, सबसे बड़ी बात है ये शेयर ही नहीं करती है कुछ भी, ये बहुत ही छुपा हुआ रुस्तम की तरह छुपा रही थी, ये शेयर नहीं करती। मैं वही कह रही हूँ एटलीस्ट शेयर करो, मतलब चाहे कुछ हो चाहे दुखी हो कुछ भी हो। तो सो व्हाट इज योर मेरा एक ही सजेशन है इसको कि डोंट बी सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड डोंट थिंक दैट आते जाते रास्ते में कोई भी कुछ भी कहीं पे भी अगर तुमको देखे एक झलक में तो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कब बोल रही हूं, मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन इसने मुझे दुख वाला वो सजेशन दिया, तो मैंने कहा अगर फ्यूचर में तुमको ऐसा लगता है तो प्लीज डोंट। तो मुझे रास्ते में अभी भी सिंगल चल रही है, मतलब अभी रास्ते में कौन आते जाते, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कोई मेरे ही प्यार। इसका ना ये एक कॉन्सेप्ट है कि सब इसको बहुत ज्यादा पसंद करता है और सब इसको बहुत ज्यादा प्यार करता है, दुनिया को नेगेटिव देख ही नहीं सकते, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट द केस, you know. So I think कि over positive होना can be harmful for you. I'm a hopeless romantic, you can say. You are hopeless, but I'm not sure whether you are romantic or not. Oh my god. ओके लेट्स, अगर आप लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में और भी एडवाइस चाहिए ना, और भी मदद देनी है, नॉट चाहिए, अच्छा चटपटी एडवाइस देनी है चाहिए या फिर सुनना है ना हमारे दोनों के रिलेशनशिप के स्टेटस के बारे में, तो प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में, हम दूसरा वाला एक वीडियो करेंगे। आज तो हम क्वेश्चनर वाला खेल रहे हैं ना, मतलब कर रहे हैं जो भी है तो नॉट टू डेट आई, तो ठीक है। अच्छा, नंबर 9 क्वेश्चन, इफ यू गेट अ चांस टू गो बैक इन योर पास्ट व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज ऑफ योर सिस पास्ट। ये क्वेश्चन कौन करता है? सो ये ना बचपन में मतलब बचपन इन टर्म्स ऑफ कॉलेज लाइफ में ना ये मॉडलिंग करती थी एंड अचानक से एक दिन इसकी मन हुई एंड मतलब इसने छोड़ दिया अपनी मॉडलिंग। तो मैं इसके पास्ट में जाके इसको ना वो छोड़ने वाला एडवाइस नहीं दूंगी, मैं बोलूँगी तू कर ये कर, साइड बाई साइड पढ़ाई भी कर एंड उसके बाद जॉब भी कर, बट अपने पैशन को जीते रहे। और ये गाना भी बहुत अच्छी गाती है बाय द वे, लेकिन इसने छोड़ दिया वो भी, तो अपने पैशन को जीना चाहिए, ये मेरी एक मतलब है। मतलब दो यू आर वर्किंग इन अ वेरी हाई पोजिशन, प्रेस्टिजियस पोजिशन, बट अपने हॉबीज को भी मुझे ऐसा लगता है कि जीना अच्छा होता है, यू नो, जीना चाहिए लाइक दैट वे। तो इट इज माई लाइक दिस थिंग्स। एंड व्हाट अबाउट यू? इफ आई गेट अ चांस टू गो बैक इन हर पास्ट, ये बचपन में चीज घी दूध बहुत खाती थी, so and that is the reason why she is oh exactly glowing glowing so much. I'm a foodie, yeah, so that is the reason. So I would have told her not to just avoid cheese and butter and ghee. Yeah, I'm a foodie, so I have never told you anything. ha Nothing, but joke apart, yeah, I would not suggest anything. I would not want it to change her because she's perfect the way she is. Yeah. So the last question is, what secret thing you wanted to share but never get any chance to say her? You start first.
ओके सो वैसे तो सब कुछ बोल देती हूँ मैं, एम लाइक अ चैटर बॉक्स, सब कुछ ही शेयर कर देती हूँ, बट हाँ एक सीक्रेट थिंग है जो मैं बताना चाहूँगी. सो वी यूज टू स्टे टुगेदर. पहले हम दोनों साथ ही रहते थे गुड़गांव में, और जब से दिल्ली आए हैं तब से. लास्ट ईयर शी मूव्ड टू दैट प्लेस मुंबई, एंड ये जब लास्ट ईयर जा रही थी तो हमने क्या किया, हमारा पहले मेकअप बॉक्स एक रहता था, ठीक है, हम ना सारे मेकअप साथ साथ करते थे, खरीदते थे एंड ऑल. तो इसका 3 इसने लिपस्टिक खरीदा था, तो वी हैव अ लॉट ऑफ लिपस्टिक, बट वो 3 शेड मुझे बहुत पसंद था. और हम जब डिवाइड कर रहे थे मैंने देखा इसने पूरा वो 3 लिपस्टिक अलग करके अपने पास रख दिया. एंड आई वाज लाइक कि यार एक अपने पास ले ले, 2 ले ले, एक तो मुझे दे दे. शी इज लाइक कि नहीं मैं तो खुद ले जाऊंगी. अब जिस दिन ये जा रही थी ना, उसके मतलब उसी दिन ही मैं जिस फ्लाइट जब इसकी था उसके 1 घंटे पहले मैंने बैग खोल के ना वो 2 लिपस्टिक वहाँ से कौन सी है वो निकाल के रख दिया, और बहुत ही परफेक्ट है. उसने पहुंच के मुझे फोन किया, दीदी क्या मैं वो घर में रख के आई हूँ. मैंने कहा हाँ तुम्हें भूल गई थी, आई डोंट नो, पता नहीं. अच्छा वो पिंक शेड वाली, पिंक शेड वाली. यस ये था लाइक आई थॉट कि ठीक है चलो बता ही देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, यू नो अब तो खत्म ही होने वाला है. पिंक और पीच कलर का लिपस्टिक है सारी. Okay, so never mind. I'm at her place only, and Yeah. after this video, I'll just immediately go to the Almira and find out my stuff. Now your turn. Secret thing. बताओ कुछ अगर बताओ. ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सीक्रेटली किया है. इसकी सामान चोरी किया है, इसकी मेकअप किट लाया है, लूडो में लाइक जो सिक्सर होता है उसकी जगह मैंने टुक करके अपनी जो गुटी है उसको वो आगे कर दिया है. क्या होता है टुक करके? लेकिन उसका एक फेवरेट ड्रेस हुआ करता था, वो लाल रेड कलर का ड्रेस था, नी लेन, तो उसमें ना व्हाइट कलर का बॉबी प्रिंट हुआ करता था, वो बेल्ट के साथ एकदम प्रॉपर उसका फेवरेट हुआ करता था. वो टच तक नहीं करने देती थी अपनी जो भी वो है. तो जब भी वो नहीं रहती थी घर पे, लाइक कोचिंग क्लास में जाती थी, कॉलेज में जाती थी, मेरा एक ही काम होता था उस ड्रेस को पहन के घर पे बैठे रहता. और व्हाट इज दिस, एंड मॉम को सब कुछ पता है, एंड शी नेवर सेड एनीथिंग टू हर. सो मतलब क्या है यार, मुझे पता भी नहीं, पता है मैं बहुत ज्यादा दिन तक पहन भी नहीं पाई थी, मुझे भी इसके चक्कर में फट गया. हाँ, तो क्योंकि पूरा दिन अगर आप पहन के बैठे रहोगे इतनी महंगे तो ऑब्वियसली फटेगी ना. मैम रियली लाइक व्हाट इज दिस, आई मीन देयर आर लाइक लॉट मोर स्टोरीज लाइक दिस. सो ये ऐसे ही है हमारी लाइफ स्टोरी. और हमारे एक छोटी वाली सिस्टर भी है, उसकी कहानी और भी अजीब गरीब अतरंगी है, दो शी इज इन हैदराबाद राइट नाउ. इफ यू रियली वांट टू यू नो वॉच अनदर वीडियो विथ 3 of us, और हमारे बीच में झगड़ा भी हो सकते, कोई गारंटी नहीं दे सकती मैं कि हम मतलब बहुत अच्छे से स्टडी बच्चों की तरह रहेंगे. तीनों बहनों में हमारी लड़ाई भी बहुत होते हैं, प्यार भी बहुत है. तो हम आप हमें ज़रूर बताइएगा, तो हम ज़रूर और एक वीडियो बनाएंगे. एंड अगर आप कुछ कहना चाहोगे कि मेरी वीडियो में. यस फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए. एंड आप अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए. नेगेटिव कमेंट थोड़ा कम कीजिएगा, बिकॉज फिर से ज़मीन पर लेट जाएगी, और देन आई हैव टू मोटिवेट हर. सो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड पैमेला मुखर्जी, एंड शी इज एंजेला मुखर्जी. अच्छे से रहिएगा. बाय बाय.